Part 3, Section B. There are 7 questions, out of which you have to attempt 4 questions. लेकिन मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ. Question number 4. The line through A -2, 3 and B 4, B is perpendicular to the line 2x minus 4y is equal to 5. Find the value of B. This is a equation of straight line. Equation of straight line के अंदर when two lines are parallel then slopes are equal, and when two lines are perpendicular then the product of the slope is equal to -1. ये concept आपको पता है. तो इसमें क्या है condition perpendicular. It means when two lines are perpendicular then the product of the slope is equal to -1. So we will find the slope A -2, 3 and B 4, B. There are 2 points. How to find the slope? जब 2 पॉइंट दिए होते हैं स्लोप कैसे निकालते हैं? फार्मूला इज, स्लोप को हम कहते हैं m से रिप्रेजेंट करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. जब 2 पॉइंट दिए होते हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो, विच इज इक्वल टू b -3 अपॉन 4 -2. चलो मैं लिख देता हूँ -2 b -3 अपॉन 4 + 2 b -3 अपॉन 6. दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू A and B. नो नेक्स्ट इक्वेशन दी हुई है हमें, क्या दिया हुआ है? 2x माइनस 4y इज इक्वल 5. लेफ्ट में x होना चाहिए पहले सबसे, फिर y, फिर नंबर चाहे उधर है चाहे इधर है. -5 को 0 या इक्वल टू 5. द x शुड बी ऑन द फर्स्ट प्लेस, y शुड बी ऑन द सेकंड प्लेस. तो इसमें स्लोप का फार्मूला होता है, there are 2 methods. You can compare with the line y is equal to mx plus c. y is equal to mx plus c. ये वाला आप फॉर्मेट बना सकते हो इसका. वो कैसे बनेगा? 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 4y. हमने इसको पॉजिटिव बना लिया. जो चेंज द साइड 4y इज इक्वल 2x माइनस 5 and y is equal to 2 upon 4x minus 5 upon 4, which is equal to 1 by 2x minus 1 by 5 by 4. y is equal to mx plus c. तो एक ये मेथड है कि यू कैन कंपेयर विद y is equal to mx plus c, m is equal to हाफ. लेकिन एक स्लोप फार्मूला ये होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. ये लगा लो, टाइम बचेगा आपका उसमें. इज इक्वल टू -2 अपॉन, माइनस लिखेंगे पहले, फिर कोएफिशिएंट x 2 लिखेंगे, नीचे कोएफिशिएंट y इज -4 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओके माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 2, कोएफिशिएंट y क्या है -4. तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2. तो देयर आर 2 मेथड्स. कैसे करना है आपको? अगर ये आपको समझ में आता है ये कर लो, नहीं तो ये याद कर लो आप. y इज इक्वल mx प्लस c कंपेयर भी कर सकते हैं. नो देयर आर 2 स्लोप्स. व्हाट इज द कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? The lines are perpendicular. It means product of the slope is equal to -1. It means m1 into m2 is equal to -1. This is first slope, this second slope. b -3 upon 6 into 1 upon 2 is equal to -1. b -3 upon 12 is equal to -1.
b minus 3 is equal to minus 12, b is equal to minus 12 plus 3, b is equal to minus 9. This is the answer. Mr. Diwan has a recurring deposit account in a bank and deposit rupees 750 per month for 2 years. If he gets rupees 19125 at the time of maturity, find the rate of interest. What is given? Principal, he deposit rupees 750 per month. He deposit rupees 750 per month, that is principal, for 2 years time. 2 years mean 24 month. Now he gets rupees 19125 at the time of maturity. It means this is MV, maturity value, or you can say matured value. Find the rate of interest. Find rate of interest mean R percent. तो how to find rate percent? इंटरेस्ट का फार्मूला लगाओ, I इज इक्वल टू P इंटू n प्लस 1 इंटू R अपॉन 2400. प्रिंसिपल 750 इंटू नंबर ऑफ मंथ 24 इंटू नंबर ऑफ मंथ प्लस 1 25 इंटू R अपॉन 2400. 24 1 दा 2400 दा 1 0 कैंसिल कर दो. नाउ 10 5 टू द 10 5 5 नीचे 2 आ जाएगा, इसको ऐसे रहने दो, 10 को ऐसे रहने दो. 75 इंटू 25 1875 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 187.5 R इंटू R into R. This is interest. Now next, maturity value is given. Maturity value का फार्मूला लिखो, MV is equal to PN plus I. यहाँ पुट कर दो वैल्यू, मेच्योरिटी वैल्यू की 19125 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 750, जो हम मंथली डिपॉजिट करते हैं उसको एज ए प्रिंसिपल P लेना, इंटू N 24 प्लस इंटरेस्ट 187.5 R. दिस इज इक्वल टू 18,000 प्लस 187.5 R 19125. इसको इधर माइनस कर दो, 19125 माइनस 18,000 which is equal to 187.5 R. 5211 equal to 187.5 R. इसको सॉल्व करो, 1125 अपॉन 187.5 इज इक्वल टू R. इसको नेक्स्ट कैसे करेंगे? इसका डेसिमल हटा दो, ऊपर 10 चल जाएगा, अपॉन 10 में वो ऊपर चल जाएगा. 11250 अपॉन 1875 इज इक्वल टू R. इसको करो कैंसिल, 5 3 दा 15, 3 37, 5 7 35, 2 25, 5 5 दा 25, 5 to the 10, 1 10, 1 to 12, 5 to the 10, 25, 5 5 दा 25, 0 again 5 7 दा 35, 2 25, 5 5 दा 25, 5 4 दा 20, 2 25, 5 5 दा 25, 0. Now 5 1 दा 5 5 दा 5 9 दा 0, 15 9 15 6 दा 90. R is equal to 6%. This is the answer. इसमें R फाइंड करना था. मेच्योरिटी वैल्यू वाज गिवन, प्रिंसिपल गिवन, नंबर ऑफ मंथ टाइम गिवन 2 year,
उसको मंथ में कन्वर्ट करना आपने 24 मंथ। देन मैच्योरिटी वैल्यू इज गिवन इंटरेस्ट, पहले आप इंटरेस्ट फाइंड करोगे, फार्मूला इज पी एन इंटू एन प्लस वन इंटू आर अपॉन 2400, यू विल गेट दिस वैल्यू इंटू आर। Now use the maturity value formula Pn plus I. Now put the values, you get the value of R. This was question 4 का B part. Solve the equation x square plus 7x is equal to 7 and give your answer correct to the 2 decimal place. Correct to the 2 decimal place. क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? -7 इक्वल टू 0। हमने इक्वल टू 0 लिखना है, जो भी नंबर्स हैं राइट में इसको लेफ्ट में ले आओ। नो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले एक्स के की टर्म होती है, फिर एक्स की टर्म, फिर कांस्टेंट। नो हेयर सॉल्व द इक्वेशन, वी विल यूज द फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d upon 2a and d is equal to b square minus 4ac। पहले हम d करेंगे कैलकुलेट, उससे पहले आप a b c लिख लो। a is coefficient of x square, b is coefficient of x and c is constant term -7। साइन नहीं भूलना आपने, along with साइन। तो फर्स्ट विल फाइंड d, discriminant b square minus 4ac, b is equal to 7, 7 square minus 4 into a into c minus 7, which is equal to 49 plus 28, 77. Now use the formula x is equal to -b plus minus √d upon 2a, which is equal to, पहले लिखो माइनस, देन b की वैल्यू 7 प्लस माइनस √77 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1, -7 प्लस माइनस √77। इसको आपको मैथमेटिकल टेबल मिलेगा, तो यू कैन आस्क फॉर द टेबल। मैं आपको यहाँ कैलकुलेटर से ले लेता हूँ नंबर 77 का रूट 8.774, 8.774। इसका आपको मैथमेटिकल टेबल मिलता है एग्ज़ाम में, अगर ज़रूरत पड़े आपको रूट लेने के लिए। नो प्लस माइनस मीन, एक बार इसको प्लस यूज़ करो, एक बार माइनस। Now this is equal to 1.774 upon 2 and this is minus 15.774 upon 2. Answer is 0.2 8 the 16 117, 2 8 the 16 114, 2 7 the 14, minus 2 7 the 14 .117, 2 8 the 16 117, 2 8 the 16 1 4 14, 2 7 the 14. Now write the answer up to 2 place decimal, correct to 2 place decimal। तो एक जो 2 place decimal यहाँ तक हमें आंसर देना है, डेसिमल के बाद 2 प्लेस। तो इसका आंसर जो नेक्स्ट नंबर है वो अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो इसमें 1 ऐड करते हैं, तो दिस बिकम्स 0.89 एंड दिस बिकम्स 2 डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद 2 प्लेस -7.8। ये नंबर नेक्स्ट जो है 5 से बड़ा है तो 1 ऐड करो, दिस इज आंसर। दीज आर दी आंसर्स। 2 वैल्यू आएंगी क्वाड्रेटिक की पावर 2 होती है, तो इसके जो रूट्स होते हैं एट दी मोस्ट 2, यानी मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं, तो इसके 2 आंसर आ गए आपके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, if a square plus b square upon a square minus b square equal to 17 upon 8, find the value of a ratio b
सेकंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसमें क्या करेंगे, इसको करेंगे बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो मैं लिख रहा हूँ बाई सी एंड डी, बाई सी एंड डी। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पेपर में बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को पूरा लिखना। तो कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये है न्यूमरेटर, माइनस जब करेंगे डिनोमिनेटर को दोनों साइन चेंज, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों तरफ सी एंड डी होता है, कंपोनेंट डिविडेंड दोनों तरफ होता है। 17 प्लस 8 17 माइनस 8, इसमें बी स्क्वायर कैंसिल ए स्क्वायर कैंसिल, वी गेट 2a स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन 9, 2 कैंसिल। यू कैन राइट a अपॉन b का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 5/3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल कर दो, a अपॉन b इज इक्वल 5/3। जब स्क्वायर कैंसिल होते हैं हम लिखते हैं प्लस माइनस, बट दिस इज रेशियो, तो रेशियो में आपने इसको प्लस ही लेना है। एक आंसर आपका आ गया, दैट इज a रेशियो b इज इक्वल टू 5/3। दिस इज द आंसर नंबर 1, दिस इज द आंसर नंबर 1। नाउ नेक्स्ट, a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस बी क्यूब, दोनों तरफ कर दो क्यूबिंग, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। वी गेट, चलो लिख देता हूँ मैं, a अपॉन बी का होल क्यूब 5/3 का होल क्यूब विच इज़ a क्यूब अपॉन बी क्यूब इज इक्वल टू 125 अपॉन 27। Now we need a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस बी क्यूब, अगेन सी एंड डी, इसको सी एंड डी कर दो, बाय सी एंड डी। ए क्यूब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 125 प्लस 27 अपॉन 125 माइनस 27 विच इज़ इक्वल टू 152 अपॉन 98, 249 276। तो ये हमारा आंसर आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 76 अपॉन 49। दिस इज द आंसर, आंसर नंबर 2। दिस वॉज क्वेश्चन 5 पार्ट ए। Now question number 5 part B, two chords AB and CD of a circle intersect externally at E. If EC is equal to 2 centimeter, EA is equal to 3 centimeter and AB is equal to 5 centimeter, find the length of the chord CD. CD की length find करनी है। तो this is chord property. chord property क्या होती है? When two chords intersect inside at some point P, तो क्या प्रॉपर्टी होती है? वो होती है जो P पॉइंट है उसको रिपीट कर लो बार बार, PA इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। P को बार बार रिपीट कर लो, PA इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। यहाँ पर क्या करना है, ये आउटसाइड है, यहाँ पर जहाँ मीट किया उस पॉइंट को आपने बार बार रिपीट करना है। ई ए इंटू ई बी इज इक्वल टू ई सी इंटू ई डी। तो ये ध्यान रखना आपने, कॉर्ड प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करनी है, इंटरनली और एक्सटर्नली में कैसे करना है। तो बाय कॉर्ड प्रॉपर्टी, बाय कॉर्ड प्रॉपर्टी दिस इज पॉइंट ई ए इंटू ई बी, ई को बार बार रिपीट करना है, इज इक्वल टू ई सी इंटू ई डी। तो ऐसे करते हैं, जो सी डी है उसको एक्स ले लेते हैं, सी डी को एक्स ले लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा ई ए दैट इज 3
3 इंटू ई बी कितना है 3 + 5 इक्वल टू ई सी 2 इंटू ई डी कितना है 2 + x। दिस इज 3 इंटू 3 + 5 8 इज इक्वल टू 2 to the 4 plus 2 into x 2x which is equal to 24 minus 4 equal to 2x. 20 is equal to 2x or you can say 2x is equal to 20. x की टर्म को लेफ्ट लिख दो, उसको उधर लिख दो 2x और 20 and x is equal to 10. Therefore हमें फाइंड करना है सी डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी। द स्लोप ऑफ ए लाइन जॉइनिंग P and Q इज इक्वल टू 1/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ K, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P and Q and midpoint of the line PQ. Now slope of a line is given 1/2. This is P 6, K and this is Q 1 minus 3K, 3. Slope of the line is equal to 1/2. तो slope कैसे निकालते हैं? y2 minus y1 upon x2 minus x1 which is equal to 1/2 given, but you have to write x1 y1 x2 y2. it means इसको लिख लो x1 y1, इसको लिख लो x2 y2. तो slope is given 1/2. now y2 is 3 minus y1 is k upon 1 minus 3k, this is x2. what is x1? 6 is equal to 1/2. 3 minus k is equal to minus 5 minus 3k. 1 minus 6 is minus 5 which is equal to 1/2. Cross multiply 2 into 3 minus k equal to 1 into minus 5 minus 3k. 2 3 6 minus 2 into k is equal to 1 into minus 5 1 into minus 3k. 1 लिखो ना लिखो, अगर लिखा तो ठीक है, नहीं लिखा तो ना सही। तो ये आ जाएगा -2k, 3k को इधर ले आओ प्लस बन जाएगा इज इक्वल टू -5, 6 को उधर ले जाओ, k इज इक्वल टू -11। एक आपका आंसर आ गया k इज इक्वल टू -11। अब हमें कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q, P है हमारे पास 6, K, तो ये बन जाएगा 6, -11। एक आंसर ये आ गया आपका। Q इज इक्वल टू 1 minus 3k, 3 विच इज इक्वल 1 minus 3 इंटू k की वैल्यू क्या आई थी आपकी -11, 3 विच इज इक्वल टू 1 minus 3 इंटू -11 प्लस 33, 3 विच इज इक्वल टू 34, 3. दिस इज Q. Coordinates of P and Q, we got it. Now next, midpoint of PQ. Midpoint of PQ का मतलब PQ लाइन का midpoint. P है हमारे पास 6, -11, Q है 34, 3. Let M be the midpoint. Let M be the midpoint. ये हो गया आपका x1 y1, this is x2 y2 and this is xy. by midpoint formula,
व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मिड पॉइंट? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, विच इज इक्वल टू 6 प्लस 34, 6 प्लस 34 अपॉन 2, and this is equal to this minus 11 plus 3 upon 2. This is equal to 40 upon 2, and this is equal to minus 8 upon 2, which is equal to 4, and which is equal to 20. तो इसका बन जाएगा m मिड पॉइंट. m इज द मिड पॉइंट. दिस इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ m बन जाएंगे 20 कोमा माइनस 4, 20 कोमा माइनस 4, 20 कोमा माइनस 4. m इज इक्वल टू 20 कोमा माइनस 4. कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट मिल गया आपको. दिस इज द आंसर. एंड k is equal to minus 11. This is the answer. P is the answer, and Q is the answer. These are all the answers. Coordinates of P and Q मिल गए. Okay. Find the value of x which satisfy the equation this. X belongs to W. W mean whole number. Graph the solution on the number line. पहले x की वैल्यू फाइंड करो, फिर उसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करो. तो इसमें क्या करो, दो पार्ट कर लो इसके. -2 5/6 लेस देन 1/2 -2x अपॉन 3. और ये रिपीट करो मिडल वाला टर्म 1/2 माइनस 2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू 2. -6 और 12 प्लस 5 17.6 माइनस इसका एलसीएम ले लो 2 3 द -3 टू द 2 टू द 4x. ये 6 नीचे दोनों आफ्टर टेकिंग एलसीएम यू कैन कैंसिल दिस. यहाँ पर आप कैंसिल नहीं कर सकते, आपको एलसीएम लेके उसके बाद दोनों नीचे का सेम है कैंसिल कर दो. -17 लेस देन 3 माइनस 4x. 4x को लेफ्ट में ले आओ, 17 को राइट में ले जाओ. 4x लेस देन 20, x लेस देन 5. दिस इज अगेन टेक एलसीएम 6 2 3 द 3 1 द 3 2 द 2 टू द 4 x लेस देन इक्वल टू 12. 3 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 6 टू द 12. माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 3. माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 9. तो इसमें पहले आप इसको माइनस को शिफ्ट करो. जब माइनस शिफ्ट करेंगे तो ये साइन उल्टा हो जाएगा. इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, -4x लेस देन इक्वल टू 9 -9 लेस देन इक्वल टू 4x. x को पॉजिटिव बना लिया हमने, तो ये बन जाएगा -9/4 लेस देन इक्वल टू x. इसको रोटेट कर दो, x ग्रेटर देन इक्वल टू -9/4. ऐसे कर लो, या माइनस x को लेफ्ट में रहने दो और नंबर को उधर ले जाओ. तो अब माइनस को शिफ्ट करेंगे तो साइन उल्टा हो जाता है. इट मीन दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो तो साइन बीच वाला उल्टा हो जाता है. तो ये बन जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -9/4 विच द वैल्यू इज -2.25. ओके, तो इसको कंबाइन करो. यहाँ पर यहाँ लिखो x, ये दो साइन लगा दो, यहाँ सेट कर लो इसको. x लेस देन 5 यहाँ पर, x ग्रेटर देन इक्वल टू -9/4. नो solution set. Solution set. The value, the x belongs to w whole number. तो नेगेटिव तो हमने लेना नहीं है, 0 से शुरू करना है. तो 0 से शुरू करोगे तो लेस देन 5 मीन 4 तक. 0 1 2
3 4। इसको नंबर लाइन पर प्रेजेंट करो, 0 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा एक माइनस शो कर दो। तो ये नंबर को डार्क कर दो, 0 1 2 3 and 4। Now this is the question 6 part A. If x plus 2 x plus 3 are factors of the equation x cube plus ax plus b, find the values of a and b. Chapter factorization, remainder and factor theorem। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारा ये एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस 2 is a factor of this, x plus 3 is also a factor of this, x plus 2 is a factor, x plus 3 is a factor। तो फैक्टर में क्या होता है कि जब हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं तो अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर शुड बी 0। तो इसमें हम क्या पुट करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 इक्वेट करके वैल्यू निकालो x की, ये वैल्यू यहाँ डाल दो, -2 क्यूब प्लस a इंटू -2 प्लस b, यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस इज ए फैक्टर, इट मीन्स दिस इज रिमाइंडर, तो रिमाइंडर शुड बी 0। ये बन जाएगी इक्वेशन, बन जाएगा -8 -2a प्लस b इज इक्वल 0, -2a प्लस b इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर 1। x प्लस 3 इज ए फैक्टर, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, इसके अंदर पुट करो, -3 का क्यूब प्लस a इंटू -3 प्लस b। नो दिस इज ए फैक्टर, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज रिमाइंडर शुड बी 0, देयरफॉर इट इज़ ए फैक्टर। जब फैक्टर दिया होता है तो रिमाइंडर, ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर को हम 0 पुट कर देते हैं। -27 -3a प्लस b इज इक्वल 0, -3a प्लस b इज इक्वल टू 27। इसको सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, -3a प्लस b इज इक्वल टू 27 -2a प्लस b इज इक्वल टू 8। तो इसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, साइन चेंज, तो सबके साइन चेंज कर दो, इसे कहते हैं सब्ट्रैक्शन, यानी सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करो, मीन्स सारे साइन चेंज कर दो। तो मिडल वाले साइन छोड़ दो, b प्लस का b माइनस का, तो -3 प्लस 2a माइनस a इक्वल टू 27 माइनस 8 19, a इज इक्वल टू -19। पुट a इज इक्वल टू -19 इन इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2। तो इन 1 में पुट कर दो, 2 इंटू -19 प्लस b इज इक्वल टू 8, 38 प्लस बन जाएगा ये, प्लस b इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 8 माइनस 38, b इज इक्वल टू -30। a is equal to -19, b is equal to -30, this is the answer। Equation of straight line का क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC are a 3,8, b -1,2 and c 6,-6। Find the slope of BC and equation of a line perpendicular to BC and passing through A। तो यहाँ लिख लो तीनों वर्टिसेस, स्लोप ऑफ BC फाइंड करना हमने, तो B और C लिख लो, B is 3,8 and C is -1,2।
दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2. स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू फार्मूला इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, विच इज इक्वल टू 2 माइनस 8 अपॉन माइनस 1 माइनस 3, इट बिकम्स माइनस 6 अपॉन माइनस 4. ए था 3,8, बी था -1,2. ओके, हमें फाइंड करना था बी सी का स्लोप. बी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करना हमने. तो दिस इज बी सी. बी है -1,2, -1,2. सी 6,-6. स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो, विच इज़ इक्वल टू -6 -2 अपॉन 6 माइनस -1, विच इज़ इक्वल टू -8 अपॉन 6 प्लस 1 -8 अपॉन 7. दिस इज आंसर नंबर 1. नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू बी सी. Find the equation of the line perpendicular to BC. यह बना लेते हो perpendicular to BC through A. Find the equation line perpendicular to BC through A. इसका नाम रख लो D. Find equation of perpendicular. इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर, यानी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन. चलो पूरा लिख लो. इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू बी सी थ्रू ए. तो उसमें क्या, हमें ए डी का परपेंडिकुलर का स्लोप चाहिए. स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ए बी. इसका शॉर्टकट था कि अगर दो लाइंस हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1. अगर एक स्लोप हमें पता है, मान लो बी सी का, तो ए डी का क्या होना चाहिए, नेगेटिव रेसिप्रोकल. ये आपको पता होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल. स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन ए डी, स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन ए डी इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दी लाइन बी सी. जो पहले स्लोप निकाला हमने बी सी का, हमने अब परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ लाइन बी सी. मैं लिख देता हूँ, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ बी सी. ये याद रखना आप. बी सी का अगर स्लोप पता है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है. तो शॉर्टकट क्या है, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दी स्लोप बी सी. नीचे बी सी लाइन थी, ऊपर ए डी. तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल. नेगेटिव का नेगेटिव रेसिप्रोकल पॉजिटिव बन जाएगा, इसका 8.7 बन जाएगा 7.8. ये आपको स्लोप मिल गया ए डी का. अब हमें इक्वेशन ऑफ ए डी निकालनी है. इक्वेशन ऑफ लाइन ए डी, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन ए डी. इक्वेशन कौन सी है, y माइनस y1. जब स्लोप पता है और एक पॉइंट पता हो तो इसको लिखो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. नो x1 y1 आपने इसको लेना a को, थ्रू a का है ना, थ्रू a. इक्वेशन लाइन इक्वेशन लाइन, इक्वेशन ऑफ ए परपेंडिकुलर लाइन. एक मिनट. इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ए डी थ्रू ए. जो थ्रू ए बोला है वो ए क्या है, हमारा ए पॉइंट है 3,8.
तो ये हमें x1 y1 लेना है, स्लोप हमें ये निकाल लिया AD का 7.8, y माइनस y1, x1 y1 इसको ले लो, x1 y1 क्या है 8 इज इक्वल स्लोप क्या है 7/8, x माइनस x1 इज 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 इंटू वाई माइनस 8 इंटू वाई 8 इंटू 8 64, 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू 3। तो हमें क्या रखते हैं, x की वैल्यू पहले होनी चाहिए, फिर बाद में y, फिर नंबर। तो x पॉजिटिव होना चाहिए, ये क्या x, ये पॉजिटिव है तो सारे उधर ले जाओ। 0 इज इक्वल टू 7x माइनस 8y, ये ऑलरेडी इधर है, उसको ऐसे रहने दो -21, इसको इधर ले आओ प्लस 64, दिस बिकम्स 7x माइनस 8y प्लस 43, ये 0 इधर लिख दो। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज आंसर। एक ये आंसर है हमारा स्लोप ऑफ BC, आंसर नंबर 1, ये आंसर नंबर 2। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट C। Find the point which divides internally the line segment joining the points A and B in the ratio 1:3। This is a question of section formula। जब ये रेशियो का नाम आता है तो हम क्या करते हैं, सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बना लो, A इज -3,9, B 1,-3। Find a point which divides the line segment joining A and B in the ratio 1:3। Let it be xy, this is x1 y1, this is x2 y2, and this is m1 m2। By section formula x is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। x is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। In the same way, y is equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। Always write formula। तो now put the values 1 into 1 plus 3 into -3 upon 1 plus 3, and y is equal to m1 1 y2 कितना -3 plus m2 3, now this is y1, this is 9 upon m1 y2 mean 1 into -3 plus 3 into 9 upon 1 plus 3, which is equal to -3 plus 27 upon 4, and this is equal to 1, 3 into -3 -9 upon 4 minus 8 upon 4, and this is equal to 24 upon 4, which is equal to -2 and 6. Now P, we have to find P. Coordinates of P is equal to -2, 6. This is the answer। हमें कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड करने थे जो लाइन को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:3। तो दिस इज आंसर, P इज इक्वल टू -2, 6। इन द गिवन फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू PST इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल PQR दिस इज 90 डिग्री, एंगल PST 90 डिग्री। देन PQ इज इक्वल टू 5, PQ is equal to 5 centimeter and PS is equal to 2 centimeter। This is given to prove triangle PQR similar to PST। तो आपको ये सारा लिखना होता है, given angle PQR is equal to angle PST
इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज गिवन, और पी क्यू इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन था, वहाँ से देखे गिवन में आ जाएगा। और एस टी इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। दिस वॉज गिवन। नाउ राइट टू प्रूव नंबर 1, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू पी एस टी, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू पी एस टी triangle. Second part, find area of triangle PQR upon area of quadrilateral SRQT. This is a question. Now prove PQR similar to PST. प्रूफ में क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल्स पी क्यू आर एंड पी एस टी, इसमें एक एंगल तो गिवन है आपको, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी एस टी। ट्रायंगल का भी सेम नाम है, एंगल भी यही बन रहे हैं, पी क्यू आर 90 है, पी एस टी ये भी 90 है, तो ईच इज इक्वल टू 90। इसका रीजन क्या आएगा? ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इसका है, पी इसके अंदर भी आ रहा है, छोटे ट्रायंगल में और बड़े ट्रायंगल में, दोनों में आ रहा है। एंगल पी इज इक्वल एंगल पी, यहाँ लिख दो कॉमन, बाई एंगल सिमिलैरिटी, ट्रायंगल PQR similar to triangle PST. Now this is first part, proved, यहाँ लिख दो proved first part. Now second part is what? Area this upon this. तो एरिया थ्योरम लगा दो इसके ऊपर, जब ट्रायंगल दो सिमिलर हो जाएं उसके बाद यू कैन यूज द एरिया। अगर सिमिलर नहीं है तो यू कैनॉट अप्लाई द एरिया। तो नाउ दिस इज सिमिलर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, पी क्यू स्क्वायर अपॉन पी एस स्क्वायर। You can write PQ square upon PS square और QR square upon ST square और PR square upon PT square। तो PQ और PS हमें पता है, तो you apply this PQ square upon PS square which is equal to PQ is 5 upon PS is 2 is equal to 25/4। तो हमारा आंसर आ गया ट्रायंगल PQR अपॉन ट्रायंगल PST, एरिया का रेशियो आ गया 25/4। लेकिन हमें पूछा गया एरिया ऑफ PQR अपॉन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो सिंपली लिख दो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दैट इज SRQT विच इज इक्वल टू PQR क्या था 25 अपॉन 25 माइनस, या ऐसे करो एक लाइन और लिख लो, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल SRQT को हम क्या कह सकते हैं? पूरा ट्रायंगल PQR माइनस दिस ट्रायंगल, तो हमारा ये मिल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, SRQT की जगह लिख दो दिस पूरा ट्रायंगल माइनस दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल PQR, एरिया ट्रायंगल PQR माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PST, एरिया ऑफ ट्रायंगल PST। नाउ दिस इज इक्वल टू दिस,
तो ये बन जाएगा 25 पी क्यू आर अपॉन पी क्यू आर 25 माइनस 4 पी एस टी इज 4. तो ये रेशियो है, यू कैन राइट दिस 25 अपॉन 25 माइनस आर विच इज इक्वल टू 25 अपॉन 21. दिस इज आंसर, दिस इज सेकेंड आंसर. तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सिमिलैरिटी. A model of the building is constructed to a scale factor 1:40. इसमें scale factor is given is equal to 1:40. This is a solution. Scale factor is given. You know the criteria. Actual length, actual distance is equal to k into length of the model, and actual area is equal to k square into area of the model, and actual volume is equal to k cube into volume of the model. तो इसमें क्या है, a model of the building is constructed to a scale factor this. If the height of the model is given 60 centimeter, find the actual height of the building in meters. तो यहाँ लिख लेते हैं actual height of the building is equal to k into height of the model, height of the tank of the model, height of the model लिख लो. Actual, if the height if the height of the model is 60 centimeter, यहाँ टैंक नहीं मेंशन किया. If the height of the model is 60 centimeter, find the actual height of the building. Okay, building. तो this is actual height of the building is equal to k into height of the model. तो k क्या है, this is 1:k mean k है 40 into height of the model is 60 centimeter which is equal to 2400. Okay, this is a centimeter, 60 centimeter. So this is answer is in centimeter, but he said find the first part, this is फाइंड द एक्चुअल हाइट ऑफ द बिल्डिंग इन मीटर. तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, 24 मीटर. दिस इज आंसर नंबर फर्स्ट. सेकंड, सेकंड में है इफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द टैंक एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग is 64 meter cube, find the volume of the tank on the top of the model. तो ये सेम लिख लो, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग is equal to k cube into volume of the tank on the top of the model. Volume of the tank on the top of the model. The value of volume of the tank at the top of the building is given. This is 64 meter cube. 64 meter cube is equal to k cube. K factor हमारा 40, cube का मतलब 40 into 40 into 40 into volume of the model लिख दो, volume of the tank, volume of the tank
ऑफ द मॉडल। तो इसको नीचे ले आओ इधर, 64/40 इंटू 40 इंटू 40, इसको कैंसिल करो, विच इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द मॉडल। यहाँ पूरी लाइन लिख दी हमने, दिस इज़ वॉल्यूम ऑफ द टैंक ऑन द टॉप ऑफ द मॉडल। यहाँ हमने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ द टैंक ऑफ द मॉडल ऑन द टॉप, छोड़ दिया, थोड़ा शॉर्ट कर दो, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल। तो दिस इज़ 4 10 द 4 16 द 4 10 द 4 4 द 4 10 द 4 1 द, वी गेट 1/1000। दिस इज़ द मीटर, यूनिट क्या हमारे पास, मीटर क्यूब। तो यू कैन राइट द आंसर, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल इज इक्वल टू 0.30 है ना, 1 2 3 इतने मीटर क्यूब। यू कैन राइट द आंसर इन डेसिमल, और यू कैन कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। अगर फ्रैक्शन हो तो यू कैन चेंज इन द सेंटीमीटर। मीटर क्यूब है ना, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। इसको 3 बार 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यूब है ये, 3 बार 100 से मल्टीप्लाई करो, 30 1 2 3, हमने इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। यू कैन डू आल्सो दिस। तो इसमें पॉइंट लगा दो, 0.001 मीटर क्यूब। इफ P इज इक्वल टू दिस एंड I, this is I is equal to 1001, फाइंड P स्क्वायर माइनस 5P प्लस 7I। तो यहाँ लिखो P स्क्वायर माइनस 5P प्लस 7I इक्वल टू P स्क्वायर मीन P इंटू P, मैट्रिक्स में होल स्क्वायर नहीं लगता, इसमें P स्क्वायर को P इंटू P, P की वैल्यू है 4 1 -2 2 इंटू P 4 1 -2 2 प्लस माइनस 5P 5 इंटू P, P इज़ 4 1 -2 2 प्लस 7I, I मीन यूनिट मैट्रिक्स, I मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो I क्या होता है, 1001, बट इट इज़ गिवन आल्सो, इट इज़ गिवन आल्सो। अगर गिवन ना हो तो यू नो I इज इक्वल टू 1001, विच इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स, इसका रो इसका कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट 4 4 द 16 प्लस सेकेंड एलिमेंट टू सेकेंड एलिमेंट 1 इंटू -2। ये मेथड होता है कि इसके रो इसके कॉलम, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विद सेकंड कॉलम। नाउ फर्स्ट रो इंटू सेकंड फर्स्ट कॉलम, नाउ फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, 4 इंटू 1 फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट 2। दिस इज द मेथड। नाउ सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट -2 इंटू 4 -8 प्लस सेकंड एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट 2 इंटू -2 -4। नाउ सेकंड रो विद सेकंड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट -2 इंटू 1 -2 प्लस सेकंड एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट 2 इंटू 2 4 माइनस, दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बाहर नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, बट माइनस का इफेक्ट नहीं होगा इसका, माइनस तो ऐसे रहेगा, ओनली 5 से करना है, 5 4 द 20 5 1 द 5 5 इंटू -2 10 -10 5 2 द 10 प्लस 7I 7 इंटू 1 7 7 इंटू 0 0 7 इंटू 0 0 7 इंटू 1 7। ये बन गया आपका 16 -2 14 4 प्लस 2 6 -8 -4 -12 -2 प्लस 4 2। नेक्स्ट -25 -10 10 प्लस 7 0 0 7। यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं,
दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। वो बॉड मास का मेथड अप्लाई करते हैं, पहले प्लस करो फिर माइनस करो। इसमें क्या होता है, अगर ये टर्म प्लस करोगे तो ये तो माइनस किया ना। जैसे -1 + 2 क्या होता है, 1। -1 + 2 1 क्या, क्योंकि आपने इसको माइनस को रखा, कंसिडर किया, -1 + 2 इज +1। कई बच्चे क्या करते हैं, -1 + 2 3, ये गलत है। 1 + 2 3, 1 तो माइनस का है। तो ये बच्चे यहाँ पर गलतियाँ करते हैं। इसलिए आप क्या करो, हमेशा जब 3 टर्म्स होती हैं तो पहली 2 सॉल्व कर लो, जब आंसर आएगा उसको थर्ड के साथ सॉल्व कर दो, तो कभी गलती नहीं होगी आपकी। तो इसको कई बच्चे कहते हैं नहीं प्लस पहले करना है माइनस बाद में करना है, ऐसा नहीं है। बॉड मास में ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये करना है हमने सिस्टमेटिकली। उसके बाद जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन रह जाती है उसको आप कोई भी पहले कर सकते हो, दोनों साइमल्टेनियस कर सकते हो, इकट्ठे कर सकते हो। तो बेटर क्या है, पहले ये करो, जो आंसर आएगा उसमें ये करो। ये बन जाएगा 14 - 20, 14 - 20 क्या आएगा, -6, 6 - 5 1, -12 माइनस माइनस ये आ गया माइनस माइनस प्लस, +10, -12 + 10 -2, 2 - 10 -8 +7 0 0 7। अब इसको सॉल्व कर लो। -6 + 7 1, दिस इज 1, 1 + 0 दिस इज 1, -2 + 0 -2, -8 + 7 -1, this is answer. This is a question on the AP arithmetic progression. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कोई भी सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, और जीपी क्या होती है जिसमें कॉमन रेशियो सेम होता है। नाउ दिस इज a question of AP. The fourth term of AP solution, fourth term यानी A4 of an AP is 22 and 15th term A15 is equal to 66. Find the first term common difference and sum of the first 8 term. A4 mean A plus 4 minus 1 3, A plus 3D is equal to 22, A15 A plus 15 minus 1 A plus 14D is equal to 66. यहाँ पर आप फार्मूला लिख दो उसका, an nth टर्म का फार्मूला, an is equal to a plus n minus 1 into d। ये फार्मूला आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पर। A4 मीन a plus 4 minus 1 दैट इज a plus 3d, तो हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। a plus 3d, ये 15 है तो a plus 14d, तो दो इक्वेशन बन गई। इनको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर लो। तो लिखो, ये ऊपर लिख लो, बिगर नंबर ऊपर लिख लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। a plus 3d, a plus 14d is equal to 66, a plus 3d is equal to 22। साइन चेंज कर दो, क्योंकि ये ए दोनों प्लस के थे, कैंसिल करना हमने इनको, ये कैंसिल हो गया। 14 - 3 11d is equal to 44, d is equal to 4। put d is equal to 4 in equation number 1। 1 में डाल दो, 2 में डाल दो। a plus 3d, d की वैल्यू क्या है 4 is equal to 22। now this becomes a plus 12d, a plus 12 is equal to 22, a is equal to 22 minus 12, so a is equal to 10। now this is a and d, we got the value a and d, first term and common difference। now find the sum of 8 terms। S8 sum of first 8 term, S8 का मीनिंग होता है sum of first 8 terms। this is a formula 8/2 n/2 into 2a plus 8 minus 1, n minus 1 mean 8 minus 1 that is 7d। यहाँ पर दोनों फार्मूले आप लिखोगे, हमने an भी यूज़ किया और sn भी यूज़ किया। n/2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस n minus 1
इंटू डी, दिस इज इक्वल टू एन क्या है S8, S8 मीन n इज 8, n बाई टू 8 बाई टू दैट इज 4, 2 इंटू ए की वैल्यू फाइंड की थी हमने 10, 2 इंटू 10 प्लस 7 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या आई थी 4, विच इज इक्वल टू 4, 2 10 द 20 प्लस 7 4 द 28, विच इज इक्वल टू 4 इंटू 48, 4 इंटू 48, 4 8 द 32, 3 कैरी 4 4 द 16 प्लस 3 92, दिस इज आंसर S8. यू कैन राइट फर्स्ट टर्म आंसर नंबर 1. आप ऐसे कर सकते हो, सारे आंसर लिखो लास्ट में, दिस इज बेस्ट. A इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 4, S8 इज इक्वल टू 192 आंसर. आप रेक्टेंगल में डाल दो, लेकिन बेटर है कि अगर टाइम है तो क्लियरली लिखो ताकि टीचर को इजीली पता चल जाए कि क्या आंसर है आपके. दिस इज क्वेश्चन ऑन द बैंकिंग. रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इसको हम क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं. ये मंथली डिपॉजिट होता है, एवरी मंथ सेम अमाउंट आपने डिपॉजिट करना होता है बैंक में. दिस इज कॉल्ड रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, रेकरिंग, यू कैन से रेकरिंग डिपॉजिट और क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट. Money has a recurring deposit account in ICICI Bank for a period of 2 years. If the bank pays interest at the rate of 6% per annum and the monthly installment is ₹1000, find the interest earned in 2 years and matured value. इसमें हमें गिवन है प्रिंसिपल दैट इज इक्वल टू ₹1000 टाइम 2 ईयर. 2 ईयर को क्या करो, मंथ में कन्वर्ट करो. 2 years को मंथ में 12 to the 24 month, n number of month mean 24, r is 6%. now find the interest. What is the formula? Interest is equal to p n plus 1 into r upon 2400, which is equal to 1000. प्रिंसिपल क्या है 1000 इंटू n, 24 n plus 1 25 into r 6 upon 2400. इसमें 2 जीरो कैंसिल करो, 24 कैंसिल, विच इज इक्वल टू 10 इंटू 25 इंटू 6. 25 इंटू 6 होता है 150 इंटू 10 1500. दिस इज I रुपीस. दिस इज द फर्स्ट आंसर. This is interest mean I. Next, matured value. Matured value, maturity value भी कहते हैं. Maturity value क्यों कहते हैं? जब आपने कोई डिपॉजिट किया कुछ पीरियड, टाइम पीरियड के लिए, वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, टाइम मच्योर हो गया, तो इसे कहते हैं मेच्योरिटी वैल्यू, मच्योर्ड वैल्यू. तो दिस इज अ फार्मूला PN प्लस I. एवरी मंथ यू डिपॉजिट 1000. कितने मंथ डिपॉजिट किया आपने 24. एवरी मंथ यू पे 1000 24 मंथ के लिए. इतना आपका पैसा जो बैंक में डिपॉजिट हुआ आपकी तरफ से प्लस इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको. ये दोनों पैसे आपको वापस मिलेंगे जो आपने डिपॉजिट किए थे. 1500 विच इज़ इक्वल टू 24,000 प्लस 1500 विच इज़ इक्वल टू 005 4 + 1 5 2. दिस इज आंसर. आंसर नंबर 1. Answer number 2. This is a question. This is a question number 8, part C. This is a question on GP, geometrical progression. Geometrical progression में क्या होता है कि इसका कॉमन कोई सीरीज़ है, उसमें कॉमन रेशियो सेम होता है. सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, कॉमन रेशियो शुड बी सेम. दिस इज GP. दिस इज गिवन. दिस इज GP 2 6. This is GP, this is given 2 6 18 up to 1 3 1 2 2. First term is called A and R is second term divided by first term or third term divided by second term. Second term divided by first term, you get 3. And this is last term.
this is last term. What is asked? Find the fifth term, A5. क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है AN, nth term, AR n minus 1. Now AR 5 minus 1, that is 4, which is equal to A6 R 3 raised to power 4. 6, 3 raised to 4 क्या होता है? 81. 3 into 3 into 3, 4 times. 6 1 6, 6 8 the 48. This is the fifth term of GP, that is AR4. A क्या है? यहाँ पर A हमने गलत पुट कर दिया. A है 2 और R है 3. ओके, दिस इज 2, दिस इज 2 1 the 2, 2 8 the 16. Answer number 1. This is A5. Okay. Now next is sum of the 5 terms in the progression. S5. S5 का फार्मूला, Sn का फार्मूला A R n raised to R is by n minus 1 upon R minus 1 when R is greater than 1. When R is greater than 1, you write Sn is equal to A into R is by n minus 1 upon R minus 1, which is equal to A. A कितना है? यहाँ भी लिख लो फार्मूला, R is by n minus 1 upon R minus 1, which is equal to A की वैल्यू है 2, R की वैल्यू 3, रेस पर n is 5, सम ऑफ 5 टर्म्स, माइनस 1 अपॉन R की वैल्यू क्या है? 3 minus 1, which is equal to 2. 3 raised to 5 क्या होता है? 3 5 times, 3 into 3 into 3, that is 2 4 3 minus 1 upon 3 minus 1 2, cancel 2, which is equal to 2 4 2. S5 is equal to 2 4 2. Answer number 2. Answer number 2. This is a question on factorization, mean remainder and factor theorem. Using remainder and factor theorem, find the value of A if the two polynomials ax cube plus 3x square minus 9 and 2x cube plus 4x plus a leave the same remainder when divided by x plus 3. इसमें एक कॉलम बना लो, एक तरफ लिखो ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9. सेकेंड है 2x क्यूब plus 4x plus a. These are two polynomials. When both are divided by x plus 3, when both are divided by x plus 3, leave the same remainder. Equation is given, condition is given. Leave the same remainder mean you find the value, find the remainder here and here. दोनों में remainder find करो, दोनों को equate कर देंगे because condition is given. लीव द सेम रिमाइंडर. तो रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं? x प्लस 3 को इक्वेट करके 0 के साथ x की वैल्यू फाइंड कर लो -3. तो ये वैल्यू यहाँ डाल दो, उससे रिमाइंडर मिलेगा आपको a इंटू -3 क्यूब प्लस 3 -3 स्क्वायर -9, विच इज इक्वल टू a -27 प्लस 3 9 -9 -27a प्लस 27 -9 -27a प्लस 18. दिस है रिमाइंडर नंबर 1. सेकेंड रिमाइंडर है इसका, इसको भी पुट किया हमने, सेम है ये तो सेम ही लिख दो, x इज इक्वल टू -3. ये -3 डाल दो इसके अंदर, x की वैल्यू डाल दो -3. 2 इंटू -3 का क्यूब
प्लस 4 इंटू -3 प्लस a, 2 इंटू -27, 4 इंटू -3 -12 प्लस a, विच इज इक्वल टू -54 -12 प्लस a -66 प्लस a. Now these are the two remainders. What is the condition? Condition है same remainder. According to question, इन दोनों को इक्वेट कर दो. -27a प्लस 18 इज इक्वल टू -66 प्लस a. -27a माइनस a इक्वल टू -66. 18 को इधर ले जाओ, -18. We get -28a is equal to -84. Minus minus cancel. A is equal to 84 upon 28. 28 3 the 84. This is the answer. This was question on remainder theorem and factor theorem. This is a question on matrices. Find the value of x and y if 2 into this plus this is equal to this. This is a question on matrices. You multiply the 2 into x, 2 into 7, 2 into 9, 2 into y minus 5. तो 2 को ये दोनों के साथ 2y minus 10 plus 6 minus 7, 4, 5 equal to 10, 7, 22, 15. Now add them plus corresponding elements. When we add the corresponding elements, यानी फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ. 2x प्लस 6, इसको लिखेंगे हम 2x प्लस 6. 14 प्लस -7, 14 प्लस -7. 18 प्लस 4, 2y minus 10 plus 5 equal to 10, 7, 22, 15. This becomes 2x plus 6, 40 minus 7 is 7, 18 plus 4, 22, 2y minus 10 plus 5 is -5 equal to 10. Now find the value of x and y. Equate first element to first element. 2x plus 6 is equal to 10 and then 2y minus 5 is equal to 15. फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ कर दो इक्वेट, हमें x मिल जाएगा. फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट के साथ इक्वेट कर देंगे तो y मिल जाएगा. 2x is equal to 10 minus 6, 2x is equal to 4, x is equal to 2y is equal to 15 plus y, 2y is equal to 20, y is equal to 10. X is equal to 2 and y is equal to 10. This is the value of x and y. This is a question on section formula. In the given figure, the line segment AB, meets x-axis at A and y-axis at B. The point -3, 4 divides the line segment in the ratio 2:3. The ratio is 2:3. Find the coordinates of A and B. This is x-axis and this is y-axis. Now you know the point A on the x-axis. A on x-axis. This implies A कैसा होगा? A होगा x, 0. x-axis के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है. तो B on y-axis, this implies B is equal to 0, y. मीन y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? 0, y.
तो ऐसा करो, यहाँ पर एक लाइन बना लो ए बी, बीच में लिख लो पी। पी क्या है? -3,4। ए क्या है? x,0 और बी है 0,y। तो हमें फाइंड क्या करना है? रेशियो है 2:3। फाइंड क्या करना है? कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय सेक्शन फार्मूला, बाय सेक्शन फार्मूला। जब भी रेशियो का नाम आएगा यू हैव टू अप्लाई सेक्शन फार्मूला। x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ऐसे करो, कुछ मार्क कर लो यहाँ पर, नहीं करना ना करो, बट अगर कोई एवरेज बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम आती है तो यू कैन राइट x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज xy, इसको कर लो xy, एंड दिस इज m1 m2। नो सिंपली यू पुट द वैल्यूज इज इक्वल टू 2 इंटू x2 की वैल्यू 0, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू x वैल्यू x अपॉन 2 प्लस 3 m1 प्लस m2 विच इज इक्वल, बट x की वैल्यू क्या है? -3, -3 इक्वल टू दिस 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू x अपॉन 5 -3 क्रॉस मल्टीप्लाई -15 इज इक्वल 0 प्लस 3x मीन 3x, और यू कैन राइट 3x इज इक्वल टू -15, x इज इक्वल टू -5। नो y की वैल्यू क्या है? 4 इज इक्वल टू 2 इंटू y2 दैट इज y प्लस m2 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है, दिस इज y1 0 अपॉन 2 प्लस 3, 4 इज इक्वल टू 2y प्लस 0 अपॉन 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 होता 20 इज इक्वल 2y प्लस 0 मीन 2y, और 2y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 10। हमें वैल्यू मिल गई x और y की, बट हमें क्या करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b। तो a बन जाएगा x,0, what is the value of x? 5, -5, -5,0 and b is equal to what? 0, y, तो 0, 10। This is the answer. This is a question on locus. This is a construction. You have to use compass. Use ruler and compass to construct a triangle ABC where AB is equal to 3.5 centimeter, BC 6 centimeter and angle ABC is 60 degree. First part, construct the locus of a point inside the triangle equidistant from AB and BC. Second part, construct the locus of the point inside the triangle and equidistant from B and C. Third part, make the point, mark the point P which is equidistant from AB, BC, B and C and record the length PB. This is a question on locus. First क्या ट्रायंगल बनाना हमने ABC, पहले रफ बना लो ट्रायंगल ABC, BC 6 सेंटीमीटर, AB 3.5 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC 60 सेंटीमीटर। तो इसको देख के बना लो, BC 6 सेंटीमीटर, एंगल 60, B पे एंगल बनेगा 60, दिस इज एंगल 60। नो AB 3.5, B से 3.5 कट कर दो, दिस इज A, join C, A to C. Now this is a triangle ABC according to the given measurements
वी हैव टू फाइंड कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी। जब दो लाइंस जब मीट करती हैं, ए बी एंड बी सी मीट कहाँ करती हैं, बी, बी इज़ ए कॉमन पॉइंट, तो जो उनका कॉमन पॉइंट होगा वो बी, वहाँ पर वो मीट करती हैं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगल का बाइसेक्टर बनाएंगे। तो जैसे 60-30 बना दो, यहाँ से आर्क तो बनी हुई है, यहाँ से एक आर्क लगाओ, यहाँ से एक आर्क लगाओ और इसको एक्सटेंड कर दो, जितना मर्जी एक्सटेंड कर दो, आगे तक ले जाओ चाहे। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ ए पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। जब बी एंड सी दो पॉइंट का जब नाम लेते हैं तो बी सी लाइन बनती है उससे। तो जब दो पॉइंट का नाम लेंगे तो हम उस लाइन को ज्वाइन करके जो बनेगी लाइन, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। क्योंकि देयर आर टू थ्योरम्स, वन इज फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट हो गए। आंसर क्या होता है उसका, उसका आंसर होता है लिखा होता है फाइंड द लोकस। एनीवे, थ्योरम नंबर 1, द लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू फिक्स पॉइंट। ये दो पॉइंट जब दिए होते हैं उनको ज्वाइन करके जो लाइन बनती है उसका हम बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लो वो बी और सी से इक्विडिस्टेंट हो जाएगा, जहाँ मर्जी ले लो वो इक्विडिस्टेंट पर होगा। इसलिए जब लोकस हमें फाइंड करना होता है फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, हम क्या करते हैं, बी सी का, बी और सी को ज्वाइन करके बी सी बन गया, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये बी और सी, बी से आर्क लगाओ, सी से लगाओ एक आर्क, ये दो पॉइंट मिल गए आपको, इसको ज्वाइन कर दो। पहले हमारा ये लाइन बनी थी एंगल बाइसेक्टर। जब दो लाइन का नाम देते हैं वो थ्योरम है फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस is a angle bisector, is the bisector of the angle formed by these two lines। इस दो लाइनों से जो एंगल बाइसेक्टर बनता है वो लोकस बन जाता है उसका। इस यहाँ कोई भी पॉइंट ले लो, उनके डिस्टेंस इक्वल होंगे, उनके डिस्टेंस इक्वल होंगे। तो दो थ्योरम जो है, दोनों थ्योरम यहाँ अप्लाई हो रही हैं। जब इंटरसेक्टिंग मीन ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी कहाँ मीट कर रहे हैं, ए बी एंड बी सी बी पे मीट कर रहे हैं, आगे स्टैंड कर दो, दो इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाती है। तो बेसिकली क्या है, आपने क्या सीखना है, अगर दो पॉइंट का नाम ले तो उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो, दो लाइंस का नाम ले तो जहाँ मीट करेगी उसके एंगल का बाइसेक्टर बना दो, जहाँ दोनों मीट करेंगे उसको पी पॉइंट मार्क कर दो। तो उसमें लिखा है रिकॉर्ड द लेंथ पी बी। तो ये आप इसको अपने स्केल से मेजर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सपोज दिस इज 3.5, तो यू राइट 3.5 सेंटीमीटर इन ए फिगर इन ए ग्राफ शीट। ये ग्राफ का क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है, ये चैप्टर है रिफ्लेक्शन। इन ए ग्राफ शीट प्लॉट द पॉइंट्स O 0,0, A -4,4, B -3,0 and C 0,-3 यूजिंग ए स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट। तो आपको जो ग्राफ शीट मिलती है स्कूल में वो तो 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट का ही होता है, अदरवाइज 1 सेंटीमीटर के ग्राफ भी होते हैं। तो स्कूल में जो मिलेगी बोर्ड में 2 सेंटीमीटर का ही होगा। एंड टेक इट 1 यूनिट, 1 2 3 4 -1 -2 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये y डैश, ये x डैश, इसमें माइनस और इधर x और y में प्लस। तो ये मार्क करके उसके बाद प्लॉट करो O 0,0, दिस इज 0, जो O होता है वो ओरिजिन होता है, ओरिजिन जो होता है उस पर x की वैल्यू y की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट A -4,4, A x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 4 के सामने ये पॉइंट आ गया आपका A -4,4, B -3,0, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0, इसी के ऊपर पॉइंट आ गया आपका। दिस इज B -3,0 एंड C 0,-3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3। दिस इज द वैल्यू, दिस इज C
0, -3. B, C. O was our origin and this was A -4, 4. Now using, okay, now reflect. First part क्या है? Reflect points A and B on the y axis. y axis में जब पॉइंट रिफ्लेक्ट करते हैं तो x का साइन चेंज होता है, तो बन जाएगा हमारा A डैश B डैश. हमने A और B को रिफ्लेक्ट करना है ऑन द y एक्सिस एंड नेम देम A डैश B डैश respectively. Write the coordinates of A dash and B dash of the images. Images mean A dash B dash. ये आपने लिखना भी है और इसके ऊपर रिफ्लेक्ट भी करना है, इसके ऊपर प्लॉट भी करना है. तो पहले लिख लो A डैश क्या बन जाएगा, y का साइन चेंज, सॉरी ऑन y एक्सिस मीन x का साइन चेंज. व्हाट इज A था -4, 4. x का साइन चेंज करेंगे तो बन जाएगा 4, 4. रिफ्लेक्शन इमेज. एंड B है -3, 0, तो x का साइन चेंज कर दिया 3, 0. तो दीज आर दी इमेजेस ऑफ A एंड B. इसको प्लॉट कर लो. A डैश 4, 4 एंड B डैश 3, 0. ओके, नेक्स्ट नेम द फिगर O A B C B डैश A डैश. ज्वाइन कर दो. O इज दिस, A, B, C, then B डैश A डैश. वापस जहां से चले थे वहां वापस. ये फिगर बन गया. अब इसको नेम करना है, तो इसको नेम करना है. जो पॉलीगन्स होते हैं, दिस ए पॉलीगन, क्लोज फिगर्स होती है, पॉलीगन्स होते हैं, तो उनके नेम होते हैं. जो 3 साइड होती है ट्रायंगल, वहाँ से पॉलीगन शुरू होता है. 3 और मोर देन 3 साइड. 3 को बोलते हैं ट्रायंगल, 4 को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, 5 को पेंटागन, 6 को हेक्सागन, 7 को हेप्टागन और सेप्टागन, 8 को ऑक्टागन, 9 को नोनागन, 10 को डेकागन. तो ये जो नेमिंग्स हैं, आपने यही नेमिंग करनी है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड. कुछ टीचर कहते हैं इसको 6 साइडेड फिगर लिख दो, 7 साइडेड फिगर लिख दो, तो ऐसा नहीं है. आपको नेम करना है. फिगर का नेम लिखा है, नेम दी फिगर. तो नेम द फिगर में ये बन गई 1 2 3 4 5 6. दिस 6 मीन हेक्सागन. तो आप इसको लिखो ज्योमेट्रिकल नेम, इट इज़ ए हेक्सागन. इट इज़ ए हेक्सागन. हेक्सागन. ओके, तो दिस वाज क्वेश्चन 10C. दिस वाज द लास्ट पार्ट. क्वेश्चन पेपर का आपका लास्ट पार्ट था. मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व कर दिया. इसमें 10 क्वेश्चन थे. तो ये क्वेश्चन पेपर था स्ट्रॉबेरी फील्ड का मीडिया पेपर. ये मैंने सॉल्व किया है. अगर आपको अच्छा लगे कि मेरी एक्सप्लेनेशन जो मैंने की है इसके अंदर, तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो. और ज़्यादा बच्चों को शेयर करोगे, मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियो आगे बनाऊंगा. थैंक यू फॉर वाचिंग.